So in the last class, we have covered unbiased PN junction diode. Now next is biased PN junction diode. Diode is a two-terminal device. Diode is a two-terminal device. Like this is the symbol of diode, in which this side represents P side and this side जो यहाँ पे vertical line वाला side है, this is basically representing N side, means negative side of the diode. Diode means di means two, means it is a two terminal device, that's why it is known as diode. And this arrow indicates the direction of conventional current. So this is the symbol explanation of the diode. Now next is we are going to discuss बायस डायोड. थोड़ा सा हमने स्टार्ट भी कर दिया था फॉरवर्ड बायस डायोड के बारे में. So in the last class we have discussed about the forward biased diode circuit. So there are two types of biasing. One is forward biasing, another one is reverse biasing. Few important points जो हमारे यहाँ पे डिफरेंस होता है, कौन कौन सा होता है. फर्स्ट इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन द सेम पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड, मीन्स P side of the diode is connected with the positive terminal of the battery and N side of the diode is connected to the negative terminal of the battery. While in case of reverse bias condition, reverse polarity is connected, means P side is connected to the negative terminal of the battery and N side is connected to the positive terminal of the battery. The first difference in both types of biasing is this connection of battery. कैसे connect कर रहे हैं. अब नेक्स्ट जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, अभी हम देखेंगे डिटेल्ड वर्किंग ऑफ दी फॉरवर्ड बायस एंड डिटेल्ड वर्किंग ऑफ द रिवर्स बायस कंडीशन. इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन जो हमारा डिप्लीशन विड्थ होता है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर होता है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनपुट वोल्टेज. जो डिप्लीशन विड्थ है, दैट विड्थ decreases with the increase in input voltage. While in case of reverse bias condition जो width होती है डिप्लीशन लेयर की, that increases. इसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है. यहाँ पे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो हमारा करंट फ्लो होता है, दैट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. करंट फ्लोज ड्यू टू majority charge carriers. While in case of reverse bias condition, very small current flows, very small current flows, and that is due to minority charge carrier. We will discuss the operation in both the biasing condition in detail. So small current. फॉरवर्ड बायस में हम जो जनरली मान के चल लेते हैं एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन की IF फॉरवर्ड करंट फ्लोज होता है. इन रिवर्स बायस कंडीशन IF is 0, forward current is 0, while a very small current, that is reverse current, flows in the reverse direction, opposite direction में current flow होता है. So this is the basic difference between the forward bias condition and reverse bias. इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. In forward bias condition P and N, ये वाला P side हो गया, ये N side हो गया. This width of the depletion layer decreases, this width W, if we call it as W depletion width, तो ये less हो जाती है. While in case of reverse bias condition जो हमारी depletion width है वो क्या होती है, increase कर जाती है. This will become W, P side, N side, W. क्लियर. ये हमको पता ही है इंटरनली कि यहाँ पे नेगेटिव आयंस होंगे एक्सेप्टर वाले, यहाँ पे डोनर वाले जो आयंस फॉर्म हुए थे, और यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ फ्री होल्स. इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन P side is connected to positive side of the battery and N side, this is P, this is N, N side is connected to negative terminal. दिस इज द इनपुट वोल्टेज. जनरली हम इसको VF से रिप्रेजेंट कर देते हैं जो फॉरवर्ड कंडीशन में अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो यहाँ कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ही फॉलो होगा. क्यों फॉलो होगा, अभी हम डिटेल डायग्राम देखेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा हमको. तो IF करंट एग्जिस्ट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स.
that current will be in this direction. So this is the important one, डायरेक्शन हमको पता होना चाहिए. तो जो ये एरो का सिंबल होता है ये बेसिकली आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले करंट के सिंबल को ही नोट कराता है, रिवर्स में अपोजिट हो जाता है. फॉरवर्ड बायस कंडीशन की अगर हम वर्किंग की बात करें, ऑपरेशन की बात करें, तो इसके लिए हमें डिटेल्ड वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा सबसे पहले. इसमें क्या है, हमारे पास पी साइड है और एन साइड है. In the last class we have discussed about the unbiased PN junction diode. तो unbiased junction में क्या हो रहा था कि unbiased PN junction में क्या हो रहा था कि जंक्शन के पास एक हमारा जंक्शन के पास एक हमारा डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जा रहा था. वो डिप्लीशन लेयर में क्या हो रहा था, इन दिस डिप्लीशन लेयर देयर वर नो फ्री चार्ज कैरियर्स फॉर करंट कंडक्शन. मीन्स यहाँ पे क्या रिजाइड कर रहे थे, माइनस आयंस, मतलब जो एक्सेप्टर एटम्स वाले जो आयन फॉर्म हो रहे थे. क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो रहा था जंक्शन पे, तो इसके कारण हमारे पास यहाँ पे एक आयनिक लेयर फॉर्म हो रही थी. इन द सिमिलर वे यहाँ पे पॉजिटिव आयनिक लेयर फॉर्म हो रही थी. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है इन दिस रीजन. डिप्लीशन रीजन को डिप्लीशन रीजन बोलते ही हम इसलिए हैं बिकॉज ऑल द फ्री कैरियर्स आर डिप्लीटेड हियर. डिप्लीशन का बोलने का मतलब ये, डिप्लीटेड मीन्स खत्म हो जाते हैं. ऑल द कैरियर चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे यहाँ पे, आइदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री और होल्स. So all the free charge carriers are depleted off from this area. That's why this is known as depletion layer. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता था बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयोनिक लेयर. तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इन एन इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री और इन पी वी हैव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स. अब मैं अगर इसको फॉरवर्ड बायस अप्लाई करूंगी, मतलब इस टाइप से करेक्ट करूंगी सेम पोलैरिटी में, तो हमको पता है कि क्या होगा. इन द सेम पोलैरिटी जब मैं अप्लाई करूंगी, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करना शुरू करेंगे और जो यहाँ पे आयंस फॉर्म हुए थे ये अगेन इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे. और अगर मैं इस इनपुट वोल्टेज को, इफ वी इंक्रीज दिस इनपुट वोल्टेज, और जो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में इस एरिया में आए, तो अगेन ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, अब डिप्लीशन लेयर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है इन कंपैरिजन टू अर्लियर. अब ये सिमिलर वे में यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो ये हो, तो ये हमारे पास जो न्यूट्रलाइज थे वो वापस, वो सॉरी जो अनन्यूट्रलाइज हो गए थे वो वापस न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे. तो जो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो जाएगी, अब with the increase in this voltage this will increase, this will decrease. So with the increase in applied voltage width of the depletion layer decreases. This is one of the important point. At one point क्या होगा, at one point this depletion layer will collapse, खत्म हो जाएगी बिल्कुल. This depletion layer will collapse. At that point क्या होगा कि large number of electrons and holes will start crossing the junction, and we due to movement of electrons we know that क्या exist करेगा, flow of electrons is known as current. Current is due to flow of electrons now, this we know that current is due to flow of electrons. But if electrons are flowing in this direction, then what will be the direction of current? If electrons are flowing in this direction, then what will be direction of current? opposite direction. Opposite. That's why हमने ये ड्रॉ किया था यहाँ पे डायरेक्शन करंट का. करंट का डायरेक्शन हमारा ये हो गया था. तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज ये जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अगर इस एरिया में आते जा रहे हैं फ्री वाले मूव हो के, तो ऑब्वियसली जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है इस टाइप. तो यहाँ पे होल्स आएंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये लेस हो गई. और डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होगी मतलब जो ये बैरियर पोटेंशियल था इसका ये भी डिक्रीज होगा. with the decrease in width of depletion layer this barrier potential will also decrease.
I next is reverse bias diode. Reverse bias of diode. Reverse bias of diode. In reverse bias condition, the important point is that P side is connected with negative side of the battery and N side is connected with positive side of the battery input voltage. Generally, this is represented by VR, reverse voltage, V, or we can simply write V also. So because of this supply voltage, because of this kind of connection, तो जो हमारे पास अगर हम बात करें अनबायस्ड डायोड था, तो वो हमारी कोई कंडीशन थी जहाँ पे ये नेगेटिव आयन लेयर फॉर्म हो रही थी, डिप्लीशन लेयर की नेगेटिव वाला साइड, एंड यहाँ पे प्लस फॉर्म हो रहा था। ये अनबायस की कंडीशन का था। तो फॉरवर्ड बायस में हमने चेक करा और जब ड्रॉ करा डायग्राम तो हमने ध्यान रखा कि हमने लेस विड्थ का दिखाया। बट इन केस ऑफ दिस नेगेटिव बायस सॉरी रिवर्स बायस कंडीशन की नेगेटिव जो टर्मिनल है, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव टर्मिनल जो होल्स होंगे यहाँ के वो क्या होंगे, इधर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। इन द सिमिलर वे जो इधर की साइड हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन दिस एन टाइप मटेरियल, वो क्या होंगे, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव ये इधर की तरफ ट्रेवल करना शुरू करेंगे। ये अगर ये इधर की तरफ ट्रेवल करेंगे यहाँ पे नियर दिस डिप्लीशन लेयर, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब डिप्लीशन लेयर की कंडीशन क्या होती थी कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता था उस एरिया में, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द पावर सप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो सप्लाई के कारण यहाँ से चले गए, रिमूव हो गए चार्ज कैरियर्स, रिमूव हो गए जो हमारे चार्ज कैरियर्स, तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, डिप्लीशन जो विड्थ है वो इंक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि चार्ज कैरियर डिप्लीट हो रहे हैं, डिप्लीट होना मतलब खत्म हो रहे हैं, तो ये इस टाइप से डिप्लीशन विड्थ मेरी इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे यहाँ पे, लेकिन अब पहले से लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन ये मेरा जो एरिया है ये इंक्रीज हो रहा है। सेम इफेक्ट इस साइड में भी होगा कि जो ये होल्स थे ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हुए, तो यहाँ पे जो है ये विड्थ ये क्या होगी, ये जो आयंस फॉर्म होते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो एक्स्ट्रा होल्स थे वो डिटैच होके इधर की तरफ मूव कर गए। अब की बार क्या हो रहा है इन रिवर्स बायस कंडीशन, एज वी इंक्रीज दिस रिवर्स वोल्टेज, if we increase the reverse voltage, then the width of the depletion layer will also increase, means जो ये बैरियर पोटेंशियल था, दिस बैरियर पोटेंशियल विल ऑल्सो। ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब मैं ड्रॉ करूँ, जब क्वेश्चन आए एग्जाम में फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का, तो एक तो हम सबसे पहले बनाएंगे अनबायस, पूरा फुल कंप्लीट वाला बनाएंगे। जब हम इसमें कोई बैटरी नहीं लगाते थे तो वहां पे हम कुछ एक लेयर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको 2 लेयर्स पे ले ली डिप्लीशन लेयर, तो ये तो हो गया अनबायस कंडीशन। जब हम फॉरवर्ड बायस का बनाएंगे कंडीशन, तो वहां पे हम इसको लेस विड्थ का दिखाएंगे। तो लेस विड्थ का ऐसे दिखा सकती हूँ कि मैंने सिर्फ 1 लेयर ले ली, एक पॉइंट पे आके तो ये कोलैप्स ही हो जानी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं कि भाई ये हमारी ये थी डब्लू विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, यहाँ पे डब्लू मेरी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई फॉरवर्ड बायस से, ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो गया। और लास्ट में क्या होगा, रिवर्स बायस कंडीशन, जहाँ पे अपोजिट पोलैरिटी हम लगाने वाले हैं वोल्टेज की। तो यहाँ पे हम थोड़ा जैसे अभी ड्रॉ करा है ज्यादा बड़ी लेयर दिखा दें, तो देख के मुझे डायग्राम में जो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं वो चीज मुझे सिर्फ डायग्राम को देखने से क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ये हम वर्किंग में पढ़ ही रहे हैं। ये डायग्राम हो गया किसका, विद इंक्रीज डब्लू रिवर्स बायस कंडीशन का। करंट का डायरेक्शन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ फॉरवर्ड करंट था आई एफ, यहाँ अभी मैं बताती हूँ यहाँ पे रिवर्स करंट क्यों फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन में, आई आर। इस आई आर की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होती है इन कंपैरिजन टू दिस आई एफ।
ओके, पूरा फुल वाला बना देंगे, जब एग्जाम में बनाएंगे हम पूरा फुल वाला बनाएंगे। इसमें हम यहाँ पे होल्स ड्रॉ करेंगे फ्री वाले, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे। इन द सिमिलर वे यहाँ भी हम एक ही लेयर बना के यहाँ होल्स ड्रॉ करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स। In reverse bias condition, I majority will become equal to 0. Majority current is 0 in this condition, but we have some minority charge carriers also. Minority charge carrier कौन से होंगे? P side में हमें पता है very few number of electrons, and in N side very few number of holes. So because of this negative polarity of the battery, these minority electrons will start moving towards this junction, and these minority carriers will be able to cross this junction. Again जो movement of minority carriers start होगा, तो flow of electron is current. Current is due to flow of electron. तो electron अगर flow होना शुरू हुए तो एक जो current है very small amount का IR current will start flowing in the opposite direction, क्योंकि ये मेरा था इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन का होगा और ये मेरा हो गया फिर करंट का डायरेक्शन अपोजिट में। बट ये जो आई आर है इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? वेरी स्मॉल। क्यों वेरी स्मॉल होगी? बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द चार्ज कंसंट्रेशन। जो हमारे पास मोबाइल चार्ज कैरियर उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हमारे पास वेरी लेस नंबर ऑफ माइनॉरिटी हम बोलते हैं इसलिए क्योंकि वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है फ्री। तो जब वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करेंगे एंड दे विल क्रॉस द जंक्शन बिकॉज ऑफ दिस, ये जो पोलैरिटी नेगेटिव नेगेटिव के कारण, तो हमारे पास वेरी लेस अमाउंट का करंट फ्लो होगा। अब वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, दीज माइनॉरिटी कैरियर्स अकर ड्यू टू बताइए क्यों अकर होते हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, EHP जनरेशन। मैंने आप लोग को बताया था इन लास्ट क्लासेस कि जो हमारे पास बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में क्या करते हैं? जंप कर जाते हैं, इसलिए EHP क्रिएट होते हैं। तो ये अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की जाएगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो कंसेंट्रेशन ऑफ EHP है मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं, दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी कांस्टेंट। दैट्स व्हाई जो ये रिवर्स करंट होता है हम इसको बोलते हैं कि रिवर्स करंट IR इज कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट स्मॉल अमाउंट का है बट कांस्टेंट है। रिवर्स करंट IR इज स्मॉल करंट। स्मॉल करंट क्यों है? बिकॉज इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स and it is constant. That's why it is known as saturation current also. कई बार आपसे पूछा जाता है what do you mean by saturation current? तो saturation current means reverse current, and reverse current is due to minority charge carriers, and reverse current is represented by either IR or IS because it is also known as saturation current, और in later equation जो मैं आगे बताऊंगी आपको, it is also, it can be represented by I naught also. तो it is in very small amplitude, तो आप इसको जहाँ पे आपने नोट डाउन किया था डिफरेंस वहां पे नोट कर लीजिए कि जो रेंज ऑफ रिवर्स करंट होती है इन सिलिकॉन डायोड, इट इज इन नैनो एम्पियर्स। इन सिलिकॉन डायोड जो रेंज ऑफ आई नॉट होती है वेरी स्मॉल होती है इन नैनो एम्पियर्स, while in case of germanium diode जो रेंज ऑफ करंट होती है दिस रिवर्स सैचुरेशन करंट, इट इज इन माइक्रो एम्पियर। इसीलिए हम सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं। हम सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं बिकॉज सिलिकॉन हैज लेस रिवर्स सैचुरेशन करंट, और हमें जब हम सर्किट वर्क करेंगे तो हम मैक्सिमम टाइम हमें रिक्वायरमेंट होती है मेजॉरिटी करंट की, ताकि उसमें हमारा इफेक्ट ना आए माइनॉरिटी करंट का। तो सिलिकॉन का नैनो एम्पियर में होता है और जर्मेनियम का माइक्रो एम्पियर में।